Good morning. Welcome back to our YouTube channel. Today, in the occasion of 52 National Safety Week, we'll discuss about a topic near miss. Those who are working in the factories or in any industries, they are well aware about the word near miss. Then we'll see here in this chapter what is near miss, what is near miss reporting, and what are the benefits of reporting near miss, and also we'll discuss some frequently asked question answer on the near miss topic. So basically, in the plants, near miss is also known as near hit. It may be near accident, close calls, or injury free events. So near miss is basically an accident or potential hazard in which there is no damage of person or property. There is no injury, no health illness, and basically the most important thing is here that the near miss gives you a chance to avoid accident. If you report the near miss on time and you can mitigate the causes of near miss on time, so definitely you can prevent a future accident. So the most important thing is that it gives a chance to avoid accident. Near miss can lead to an accident if not reported or not attended on time. Only reporting of near miss is not important. Important factor is that after reporting the near miss you have to close that near miss. आप आपके प्लांट में कोई भी नियर मिस होता है तो उसको आप रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं और उसका स्टाटस को ओपन में रखते हैं. जब वो नियर मिस का मिटिगेशन प्लान हो जाता है, उसका कॉजेस हम एलिमिनेट कर देते हैं और वहाँ पे कोई नियर मिस रहता नहीं है, तो हम उस नियर मिस को क्लोज करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर रिपोर्टिंग ए नियर मिस वी हैव टू टेक accurate measures, accurate actions to mitigate the causes. So you see why near miss should be reported. नियर मिस को हमको क्यों रिपोर्ट करना चाहिए? बिकॉज किसी भी प्लान में जब भी नियर मिस को रिपोर्ट किया जाता है तो बेसिकली इट आइडेंटिफाई द अनसेफ कंडीशंस. जो अनसेफ कंडीशन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, जो अनसेफ एक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करता है. और बेसिकली इफ वी टेक प्रोएक्टिव एक्शन अगेंस्ट एनी नियर मिस, देन द बेस्ट पार्ट इज दैट वी कैन able to prevent a future accident. So near miss also act as a safeguard for employees, that is by taking appropriate actions. Reduce workplace accident. Definitely if we report near miss much, then definitely we will take much more actions, so that by taking these actions we can able to minimize the unsafe condition at sites. So if the site condition, the site environment, site workplace is free from accident, then definitely it can help us to reduce the workplace accident. So increase safety culture in a company. By reporting the near miss, डेफिनेटली नियर मिस हम जब भी रिपोर्ट करते हैं, दिस मे बी ए मैकेनिकल टाइप near miss, maybe electrical type near miss, maybe C&I type near miss, there are civil type near miss, so many types of near miss are there. But the thing is that if we report it on time, we can prevent the major accident. Then definitely the culture maintained in the company is very nice. और डेफिनेटली सबसे बेस्ट पार्ट मैंने जैसे बोला है, इट गिव्स अ चांस टू अवॉइड एक्सीडेंट. तो नियर मिस रिपोर्टिंग हमको क्यों करना चाहिए? इस ट्रायंगल से आपको ये पता चल रहा है,
आप इस ट्रायंगल को थोड़ा गौर से देखिए. इन दिस ट्रायंगल, if in a company there are 3 lakhs unsafe acts or unsafe conditions, we can able to identify those, and we can able to mitigate those. So definitely the near miss number can be reduced to 600. And if the 600 near miss can be avoided, can be properly action taken against all these 600 near misses, then definitely we can avoid 30 minor accidents. जो 30 माइनर एक्सीडेंट्स है वो 600 नियर मिस के वजह से हो सकता है. तो नियर मिस को अगर प्रॉपर टाइम पे हम प्रॉपर एक्शन लेके मिटिगेट कर देंगे तो 30 माइनर एक्सीडेंट कंपनी में नहीं होगा. और अगर वो 30 माइनर एक्सीडेंट को अगेन हम मिटिगेट कर देते हैं तो देयर इज ए चांस ऑफ 10 मेजर एक्सीडेंट, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. और डेफिनेटली इन एवरी 10 मेजर एक्सीडेंट्स देयर इज ए फटल, देयर इज ए डेथ केस. सो हमको प्रॉपर मेजर्स लेके अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन को मॉनिटर करना है. और बेसिकली देयर इज ए बिहेवियरल इश्यूज in the worker, in the employees, that may be due to overconfidence. Overconfidence के वजह से हो सकता है. That may be due to, you can say, thinking, attitude issues. So ये जो चीज़ें हैं जिसके वजह से वर्क एटमॉस्फेयर जो होता है वो हेल्दी नहीं होता है, सेफ नहीं होता है. तो इसीलिए हम लोग को कभी भी कोई भी जॉब करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कोई भी जॉब करने से पहले उसका हीरा हमको बनाना पड़ता है. हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करके, उसका एनालिसिस करके, उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं हम लोग. और रिस्क असेसमेंट करने के दौरान हमको कोई भी जॉब में जो हजार्ड होता है और उसके अगेंस्ट में हमको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है सो दैट एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, तो वो सब चीज़ों को हमको प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए. और टीबीटी जो कि टूल बॉक्स टॉक होता है, एवरी जॉब से पहले वी हैव टू गिव वन टूल बॉक्स टॉक टू द वर्कर्स, हाउ टू डू द वर्क, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द जॉब एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. सो इन दिस टीबीटी वी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. एंड नियर मिस जो होता है इसमें आप देखिए, अगर 600 नियर मिस को हम लोग आइडेंटिफाई करके मिटिगेट करते हैं तो एक मेजर फाटल से हम लोग साइट को बचा सकते हैं. जो ये देखिए नियर मिस, तो फिर हमने देखा रिपोर्टिंग क्यों करना चाहिए. बेसिकली जो हर्बर्ट हेनरिच हैं उन्होंने एक सेफ्टी ट्रायंगल बनाया था. एंड उस सेफ्टी ट्रायंगल में उन्होंने बोला था कि अगर उन 300 नियर मिस को हम लोग आइडेंटिफाई करके मिटिगेट करते हैं तो हम लोग एक सिंगल फटल से प्लांट को बचा सकते हैं. क्योंकि आप देखिए, कभी भी अगर कंपनी में कोई भी फटल या मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसका फिर एक कमिटी बनाना पड़ता है. कमिटी बनाने से पहले हमको पहले तो उसको फैक्ट्रीज लेवल ऑफिसर को बताना पड़ता है कि ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है, जो जिसमें बहुत सारा कंप्लेंट्स होता है, बहुत सारा उसमें जो होता है, आपको बहुत सारा रिपोर्ट बनाना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन बहुत देना पड़ता है. तो वो सारे चीज़ों से हमको बचने के लिए हमको नियर मिस को का जो रिपोर्टिंग है उसको प्रॉपर रखना है, ताकि नियर मिस, देखिए प्लांट में काम हो रहा है तो वहाँ पे कुछ अनसेफ एक्ट रहेगा, कुछ अनसेफ कंडीशंस रहेगा, कुछ बिहेवियरल इश्यूज रहेगा. बट अगर हम नियर मिस के दौरान उसको रिपोर्ट कर सकें तो फिर डेफिनेटली हम एक फाटल या कोई भी मेजर या माइनर एक्सीडेंट से हम अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं. सो ये तो हो गया. अभी हम लोग देखेंगे नियर मिस का इन्वेस्टिगेशन. तो जब भी कोई नियर मिस हो जाता है उसमें डेफिनेटली हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है. सो नियर मिस इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर ए नियर मिस रिपोर्ट. एंड हु विल प्रिपेयर द नियर मिस रिपोर्ट? डेफिनेटली जो इस नियर मिस को देखता है, साइट में जो देखता है वो ही रिपोर्ट करेगा. और वो एक नियर मिस का फॉर्मेट होता है हर कंपनीज में. उस फॉर्मेट में उस नियर मिस का फोटोज एज वेल एज नियर मिस का जो भी इंसिडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, किस लोकेशन में हुआ था, ये सारे चीज़ को शो करते हुए
एक नियर मिस का रिपोर्ट पहले बनाना है। उसके बाद हमको नियर मिस को इन्फॉर्म करना है कंसर्न डिपार्टमेंट को। मीन्स अगर किसी भी एरिया में हुआ है तो उस एरिया में काम करने वाले हर डिपार्टमेंट को, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I, सिविल, सेफ्टी, सारे डिपार्टमेंट को हमको उस नियर मिस को इन्फॉर्म करना है कि इन दिस एरिया देयर इज ए नियर मिस। सो वो नियर मिस होने के बाद हमको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, हमको उस सोर्स में जाना है, उस जगह पे जाना है, विटनेस लोगों को पूछना है, और एवरी सोर्स से वी हैव टू कलेक्ट सम information, and after collecting the information we have to also examine so that we can ascertain the truth of the informations, because only by taking the information we cannot take any proper measure, any proper actions. We have to see the truthness of the collected information. Thereafter we have to prepare a cause and effect relation diagram, and cause and effect relation diagram can be done either by Fishbone diagram or by scatter diagram or by different histograms or Pareto analysis. So there are so many methods. By using all these methods we have to prepare one cause and effect relation. Basically in the companies YY analysis is being implemented. We can use the Fishbone diagram. It was invented by Ishikawa. So एक बार हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का डायग्राम बना देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसमें कॉजेस क्या है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, एंड हाउ टू मिटिगेट दैट. सो डेफिनेटली इसमें 6M का यूज होता है, जैसे कि मैन, मेथड, मशीनरीज, ये सारे एम की यूज होता है आपका फिशबोन डायग्राम में. So after that we have to take corrective and preventive actions to eliminate the hazard जो कि इस नियर मिस में है. नियर मिस से जो भी हजार्ड आइडेंटिफाई होता है कि इस नियर मिस के वजह से, सपोज आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ओवर हियर, आप एक ऊपर में लेडर में कहीं पे काम चल रहा है, वहाँ पे टूल बॉक्स रखा हुआ है, फिटर काम कर रहा है, और वो अचानक से वो टूल बॉक्स से एक टूल जो है वो नीचे गिर जाता है, और नीचे 2-3 वर्कर काम कर रहे हैं या चल के जा रहे हैं, तो उनके आसपास में वो टूल्स गिरता है, बट किसी को हिट नहीं करता है. हमने जैसे पहले भी बोला है, नियर मिस में किसी को कोई इंजरी नहीं होता है, बट देयर इज ए बिग लेसन लर्न दैट हो सकता था. सो ऊपर में अगर कोई टूल बॉक्स लेके कोई काम कर रहा है तो हमको ये एश्योर करना है कि वो टूल्स जो है सही टूल्स है या नहीं, और टूल क्यों नीचे गिरा, क्यों स्लिपेज हुआ, जो वर्कर काम कर रहा है उसने प्रॉपर ग्रिपिंग का हैंड ग्लोव्स पहना है या नहीं. ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू बी एसर्टेन. सो इसीलिए हमको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन उस पर लेना चाहिए. और फाइनली नियर मिस इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है तो हम लोग को उस नियर मिस को क्लोज करना है और सर्कुलेट भी करना है कि उस नियर मिस से क्या लेसन लर्न हुआ सारे लोगों को, सो दैट सच टाइप ऑफ इंसिडेंट शुड नॉट बी रिपीटेड. अगर नियर मिस से हमको कोई लेसन लर्न नहीं मिलता है एंड सेम थिंग हम लोग सेम इश्यूज को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, देन the fruitfulness of the investigation is having no meaning. So definitely हमको नियर मिस को रिपोर्ट करना है, देन उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, रिपोर्ट बनाना है, देन उसको क्लोज करने के लिए सो मेनी स्टेप्स को हमको फॉलो करना है. तो बेसिकली आप देखिए, नियर मिस हम लोग जब भी कोई प्लांट में बनाते हैं, नियर मिस जो रिपोर्ट करते हैं, कुछ केस में आपने देखा होगा कि वो लोग डरते हैं कि नियर मिस हमको बनाना है या नहीं बनाना है. जैसे कि डिपार्टमेंट में क्रश होता है, मैकेनिकल में कोई नियर मिस है सपोज, और कोई डिपार्टमेंट का लड़का आके उसको बनाता है, तो फिर वो सोचता है कि मेरे को कोई कुछ ना बोले इसके लिए कि मैंने ऐसा नियर मिस बनाया है, तो शायद उनको ख़राब लगे. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको हमेशा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है प्लांट में, और डेफिनेटली नियर मिस जो भी रिपोर्ट होता है वो
अल्टीमेटली किसी ना किसी के सेफ्टी के लिए होता है, वो ही नियर मिस से किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। और एक्सीडेंट कभी भी कोई पोस्ट, कोई डेजिग्नेशन, कोई डिपार्टमेंट ये नहीं देखता है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नियर मिस एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, नियर मिस इन्वेस्टिगेशन। नाउ बिफोर क्लोजिंग दिस, लेट अस discuss some question answers related to near miss. First, is near miss an accident? As I have already said, yes, near miss is an accident, because in this accident there is no harm, zero loss, but it's an accident. Near miss should not be reported. It's false. As I said, near miss must be reported, because if you are not reporting the near miss, then there may be a chance of fatal. Fishbone diagram is introduced by whom? As I said, it is Ishikawa. Kaoru Ishikawa invented this. Which of the following is required to prepare a near miss report? नियर मिस रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? फर्स्ट, information from all source. We have to gather, we have to collect the information from different sources, different witness. Then what are the kappa, that is corrective action and preventive action, required to eliminate the accident. जो भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा उसमें जो भी रूट कॉज है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या कापा चाहिए, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है. बाय हुम नियर मिस इज रिपोर्टेड, किसने नियर मिस को रिपोर्ट किया और किस लोकेशन में वो नियर मिस हुआ, किस टाइम पे वो नियर मिस हुआ, ये सारा चीज नियर मिस रिपोर्ट में हमको लिखना है. एंड बेसिकली कौन सा डिपार्टमेंट उस नियर मिस को क्लोज करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू record all these four things in the near miss report. Is near miss reporting is a legal requirement? Definitely not, but it should be reported and recorded in every plant, because from all these small near misses there is a chance of accident. So when accident happened and there is a fatal or anything, we have to report. So that is a legal requirement. So to avoid this legal requirement, we have to report the near miss on time. Near miss is a planned event. Near miss प्लांट करके किया जाता है क्या? कभी भी प्लांट में आप जाते हैं तो नियर मिस बनाने के लिए तो आपको कोई चीज प्लांट करके करना पड़ता है? नहीं, इट्स फॉल्स. बिकॉज नियर मिस जो होता है वो किसी ना किसी के साथ हो जाता है. आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में एक गड्ढा है, तो उस गड्ढे के वजह से आप गिर सकते हैं. तो गड्ढा में आप गिरे नहीं, बट इट इज ए नियर मिस. आप गिर सकते थे, वहां पे पोर इल्यूमिनेशन होगा तो गिर सकते हैं. सपोज एक जगह पे ऑयल गिरा है, देर इज ए स्लीप हजार्ड, फॉल हजार्ड, तो दैट इज ऑल्सो नियर मिस. वहां पे कोई भी क्रॉस करेगा तो देर इज ए चांस ऑफ फॉल हजार्ड. सो ये सारा चीज नियर मिस में आता है. तो नियर मिस कभी भी प्लान्ड नहीं होता है. दिस इज हैपेंड ड्यू टू अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस. Safety triangle was introduced by, as I have already said, it's Herbert Heinrich. उन्होंने सेफ्टी ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे उन्होंने बोला था 300 जो नियर मिस है उसको अगर आप प्रॉपरली मिटिगेट करेंगे तो आप एक फाटल एक्सीडेंट होने से प्लांट को बचाव कर सकते हैं. एज पर सेफ्टी triangle, how many near miss may lead to fatal accident? Answer is 300. I have already discussed. What are the causes of near misses? Near miss होने का cause क्या हो सकता है? This may be due to unsafe act and unsafe conditions. It may be due to unsafe work practices. अगर आपका जो कोई भी वर्क करने के लिए एक SOP बनता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यू हैव टू फॉलो दैट. अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करके कोई भी प्रैक्टिस से काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर देयर इज ए चांस ऑफ एक्सीडेंट. Unsafe procedure,
अनस्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। तो जैसे मैंने बोला, आपको प्रॉपर प्रोसीजर में काम करना है। ह्यूमन एरर, कोई भी जगह पे आप अगर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है काम को करने के लिए, तो ह्यूमन से एरर होता है, गलती होता है। उस गलती को अवॉइड करने के लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, या फिर हमको चूज करना है कॉम्पिटेंट पर्सन टू डू द वर्क, स्किल्ड पर्सन देखना है। बट आपको हर जगह में स्किल्ड पर्सन नहीं मिल सकते हैं, मे बी। आपके पास जो भी मैन पावर है उसी के साथ काम करना है, तो आपको उनका स्किल लेवल को एनहांस करना है बाय गिविंग ट्रेनिंग, बाय गिविंग टूल बॉक्स टॉक, बाय डिस्कसिंग something about the work. What are the risks involved in that, or how to save yourself? So all those things we have to discuss. नियर मिस का कॉज आपने ये सब देखा, और भी है जैसे कि लैक ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस, सेफ्टी ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन वाइल जॉब डन। कोई भी काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं। कन्फाइंड स्पेस जैसे हमने बोला था कि कोई भी कन्फाइंड स्पेस, कोई भी क्लोज कंटेनर जिसके अंदर में कोई भी टॉक्सिक गैस हो सकता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, और 4 फीट का डेप्थ हो सकता है उस वेसल का, तभी हम उसको कन्फाइंड स्पेस में लेते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस का एक परमिट लिया जाता है। कन्फाइंड स्पेस परमिट में हमको वहाँ पे फर्स्ट थिंग ऑक्सीजन टेस्ट हमको किया जाता है कि उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। नॉर्मली इसका लिमिट 19.5 से 23.5 तक रखा जाता है। बट खाली ऑक्सीजन देखने से नहीं होता है, उसके अंदर और भी टॉक्सिक गैसेस हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। बेसिकली हमको ये चीज़ देखना है कि कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। आपको कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस का पैरामीटर का स्टडी होने के बाद ही आपको किसी भी लेबर को अंदर भेजना है काम करने के लिए। और कन्फाइंड स्पेस में काम करने के टाइम में हमको एक बाहर में रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है। उस रजिस्टर में कौन अंदर गया, कब बाहर आया, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। और कन्फाइंड स्पेस में बेसिकली हमको प्रॉपर एग्जस्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रॉपर एडजस्ट होना चाहिए सो दैट अंदर में जो आदमी काम कर रहा है उसको कोई सफोकेशन ना हो, वो सेफली अंदर जाके काम करके बाहर आ सके। और भी नियर मिस होने का जो कॉज होता है, यूज ऑफ अनसेफ टूल। जिस जगह पे जो टूल यूज करना चाहिए वही टीएनपी को यूज करना चाहिए। किसी जगह पे रिंग स्पैनर लगना है, वहां पे आप डी स्पैनर में काम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो किसी जगह पे अगर आपको गैस कटिंग से कटिंग कर रहे हैं सपोज, तो कटिंग करने के टाइम में आपका नीचे कोई भी ऑयल रिलेटेड इक्विपमेंट्स है तो वहाँ पे आग पकड़ने का चांसेस है। तो आपको वहाँ पे फायर ब्लैंकेटिंग करना है, फायर ब्लैंकेट ये करना है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। हाउ टू इंक्रीज द नियर मिस रिपोर्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज नियर मिस रिपोर्ट करने के लिए सारे लोग आगे नहीं आते हैं, बिकॉज देयर इज ए फियर। नियर मिस को का जो रिपोर्टिंग है उसको बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हमको पहला तो जो नियर मिस का रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट है उसको बहुत ही इजी रखना है, सो दैट कोई भी नियर मिट रिपोर्ट बनाने के टाइम में जब उस रिपोर्ट को भरता है, फिल करता है, इट शुड बी इजी एनफ टू फिल दैट फॉर्म। Then, if required, report the near miss without disclosing the identity. This is very important. Sometimes ये चीज़ देखा गया है कि आइडेंटिटी आप अगर बता देंगे किसने किया है तो अदर डिपार्टमेंट जिसके ऊपर नियर मिस रेज किया जा रहा है देयर में हैव सम कॉन्फ्लिक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच प्लेस you have to disclose the identity of the person. So please mind this, you have to do such type of things and generate curiosity to report near miss. आपको near miss every month if you give some awards to the maximum near miss reported person, then definitely there is a curiosity to report the near miss. Whenever they identify a near miss, they should report it, because there is a
an award for that. There is an appreciation for that. So this is all about near miss. Thank you very much for listening to me, and we will again meet with some attractive topics in the next session. So goodbye.